Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो Vidya. A very good morning to you all. Myself JV'n Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at JAYOTI VIDYAPEETH Women's University. This is a series of locomotor system, and our today's topic is systemic lupus erythematosus (SLE). So SLE basically is a multi-system disorder which affects many systems at a time. We will be studying this topic with this chapter. In the past, we have discussed many topics of the locomotor system. I hope you are well versed with those phenomena, with those mechanisms now, the various events that are happening in the body in various diseases. Like we have discussed about osteoarthritis, we have discussed about rheumatoid arthritis, we have discussed ankylosing spondylosis, reactive arthritis, gout, pseudo-gout, CPPD deposition, and various other disorders. But in today's section, we will be discussing about SLE. So, SLE क्या होता है, उसका presentation किस तरह का रहता है, patient हमारे पास में क्या लेके आता है, क्या sign and symptoms लेके आता है, what are the common presenting features with which a patient is coming to us. So, in this lecture, we will be discussing all those things. So, let's start with SLE, systemic lupus erythematosus. This is a very important topic. There are a lot of manifestations in this disease. So, it is very difficult to diagnose the case of SLE. आसान नहीं है SLE क्योंकि इसमें कई सारे presentations होते हैं जो कई तरह के diseases से resemble करते हैं. So diagnosing SLE is not that easy. So it is very important for us to understand the mechanism, the signs and symptoms, the investigating methods, and the management of SLE. So let's start with SLE now. It is an autoimmune disease. तो SLE है क्या basically? It is an autoimmune disease जहाँ पे आपकी body खुद के against ही antibodies बना देती है, in which the organs and cells undergo damage initially, mediated by tissue binding antibodies immune complexes. यहाँ पे होता क्या है, autoimmune disease है तो आपकी body खुद के against ही antibodies बना देती है, in which the organs and cells undergo damage. तो इसकी वजह से आपके cells और organs में damage हो जाता है, initially mediated by the tissue binding antibodies. तो जो tissue binding antibodies है वो खुद ही अपने cells और tissues को destroy करती है, immune complexes बना देती है. There is hyperactivity of the T and B cells, the production of antibodies with a specificity for nuclear antigenic determinants. तो इसमें anti-nuclear antigen positive होता है. B और T cells की hyperactivity होती है, production of antibodies होता है यहाँ पे that are specific for nuclear antigenic determinants. SLE के presentation बहुत wide होता है, बहुत सारे symptoms होते हैं, बहुत सारे clinical presentations के forms होते हैं. तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में ना. पहले हम क्लिनिकल फीचर्स में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में आइडिया बैठा सकें, आपको एक इमेज थोड़ी सी क्लियर हो कि हाँ ये सारी चीजें हम SLE में देखने वाले हैं. तो इतना आसान नहीं है SLE को पढ़ना, उसको डायग्नोज करना, उन सारे क्लिनिकल कंडीशंस को समझना इतना सिंपल नहीं है. तो इसके क्लिनिकल फीचर्स आप एक बार थोड़े से देख लीजिए. माउथ में माउथ अल्सर्स एंड नोज अल्सर्स हो जाते हैं. स्किन में बटरफ्लाई रैशेस होते हैं, रेड पैचेस होते हैं ना स्किन पे. टिपिकली आपको बटरफ्लाई रैश देखने को मिलता है, दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक फीचर ऑफ SLE. पर ये सब पेशेंट्स में नहीं मिलता आपको बटरफ्लाई रैश. यू डोंट फाइंड इन ऑल द पेशेंट्स. लंग में प्लूराइटिस हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलाई हो जाता है, पल्मोनरी हैमरेजेस हो जाते हैं, है ना. किडनी पे इफेक्ट होता है जिसमें ब्लड एंड यूरिन आ जाता है. हेयर लॉस हो जाता है, हाई फीवर, एब्डोमिनल हेडेक इसमें होते हैं. स्किन में बटरफ्लाई रैशेस, रेड पैचेस मैंने बात कर ली आपसे. हार्ट में एंडोकार्डाइटिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फाइब्रस सैक होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन यहाँ पे हो सकता है आपको. ब्लड में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. मसल एंड जॉइंट पेन पेशेंट को रहते हैं, मसल्स एंड आर्थराइटिस हो जाते हैं, स्वोलन जॉइंट्स यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं. तो आप देखोगे कितनी सारी डिजीज से इसकी रिजेम्बलेंस है. यहाँ पे डर्मेटोलॉजिकल कंप्लेंट्स हैं, यहाँ पे प्लूराइटिक कंप्लेंट है, यहाँ पे एओर्टिक कंप्लेंट्स हैं, यहाँ पे किडनी यूरोजेनेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है, ब्लड आपका इन्वॉल्व है, हीमोटोजेनस सिस्टम इन्वॉल्व है, लोकोमोटिव सिस्टम इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे कई सारे सिस्टम्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. तो इसीलिए SLE को डायग्नोज करना इतना आसान नहीं है. You have to understand the clinical picture of this disease, and then only we will be able to diagnose the case. So, pathophysiology. तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? The cause of SLE is incompletely understood. किस वजह से हो रहा है ये आज तक समझ नहीं आया है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है. तो जेनेटिक फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसके लिए इसमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. It is associated with multiple polymorphism in the HLA locus. तो यहाँ पे क्या होता है, HLA जो होता है associated होता है. There is multiple polymorphism on the HLA locus on the chromosome 6. आपकी chromosome 6 पर इसका होता है mutation and competent
कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ऑफ C1Q एंड C2 एंड C4 चेन होता है। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि TREX1, ITGAM, IRF5 एंड ST84 BFD। इसके अलावा भी बहुत सारे जीन्स बताए गए हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं आपके SLE से। The characteristic feature of SLE is the production of autoantibodies। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उसके अंदर आपकी बॉडी खुद के अगेंस्ट में ही ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है तो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है जो आपकी सेल्स को, जो आपके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर रही है आपकी बॉडी। The patient with SLE have defects in the apoptosis। apoptosis होता है programmed cell death, है ना, जो सेल्स अपने आप जैसे जैसे खत्म होते हैं, that is apoptosis। तो यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है apoptosis में, और the clearance of the apoptotic cells। तो ना तो सेल्स की डेथ टाइमली हो पाती है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जो सेल जिनकी डेथ हो जाती है उनका क्लियरेंस भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, which causes inappropriate exposure of the intracellular antigens on the cell surface leading to polyclonal B or T cells activation and autoantibody production। तो वो क्या है यहाँ पे बेसिकली, जो आपके सेल्स हैं वो जल्दी मरने लग जाते हैं, है ना, जो उसकी पूरी लाइफ होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, और जो क्लियरेंस होना चाहिए उनका सेल्स का, एपोप्टोटिक सेल्स जो डेथ हो गई जिन सेल्स की, वो क्लियर नहीं किए जा पाते हैं। तो वो क्लियरेंस नहीं होने की वजह से वो एंटीजन का काम करते हैं। जो सेल मर गए, जिनकी डेथ हो गई और उनका क्लियरेंस नहीं हो पाया, सेल डेथ एक तो एपोप्टोटिक नॉर्मल लाइफ के हिसाब से नहीं होती है, जल्दी सेल्स की डेथ होने लग जाती है, और जो सेल्स आपके इकट्ठे हो रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पाते टाइमली, है ना, उनको हटाया नहीं जा पाता, तो वो एंटीजेंस का काम करते हैं, और उन एंटीजन पे आपके बी और टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है, इम्यूनिटी डेवलप, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, और उस वजह से सारे के सारे चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। Environmental also play a very important role. Environmental factors play an important role in clearing up the lupus erythematosus, such as ultraviolet rays। अल्ट्रावायलेट रेज की एक्सपोजर की वजह से सिम्टम्स तेजी से आ सकते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनमें सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो किसी में, ऐसे इंडिविजुअल में भी एसिडी के मैनिफेस्टेशन ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड स्टिमुलेट अपोप्टोसिस। ये सब चीजें, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी, तो ये सारा चीजों का कॉम्बिनेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, अल्ट्रावायलेट रेज, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन एंड इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, these stimulate apoptosis। इसकी वजह से सेल डेथ बढ़ जाती है, और सेल डेथ होने की वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, एंटीजन मिलता है, वहाँ पे सेल्स क्लियर नहीं हो पाते, और प्योरिटी लिपोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, एक्टिवेशन हो जाता है। इडियोपैथोजेनेसिस, है ना, जिन लोगों को होता है तो 90% फीमेल्स है, वुमेन, तो ऐसे भी जिन भी लोगों में होता है उसमें 90% फीमेल्स आपको देखने को मिलेगी। पीक एज ऑनसेट इज बिटवीन 20 to 30 इयर्स ऑफ एज। तो इसमें जो मैक्सिमम एज इंसिडेंस होता है वो 20 से 30 साल की फीमेल्स को होता है, यूजुअली ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज। हमने देखा था प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो चाइल्ड बियरिंग एज की वजह से के अंदर 20 से 30 साल की एज जो सबसे कॉमन मानी गई है कहीं भी कोई दुनिया में जहाँ पे लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यूजुअली ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज, मोर कॉमन इन द ब्लैक्स देन व्हाइट्स। ये जो डिजीज होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है ब्लैक्स में इन कंपैरिजन टू व्हाइट्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड्स ऑफ एक्सरबेशन एंड रिलेटिव कोइंसिडेंस। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की स्टेजेस आती है, एक तो ऐसी आती है जिसमें तेजी से डिजीज बढ़ रही है, आगे एक्सरबेशन हो रहा है, और उसके बाद में कोइंसिडेंस मतलब शांत हो जाती है। तो दो फेजेस इसमें देखने को मिलते हैं, एक फेज जिसमें कि डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है, और दूसरा स्टेज होता है जिसमें एकदम शांत पड़ जाती है, चुपचाप रह जाती है। इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन सिस्टम एंड हैव वाइड रेंज ऑफ डिजीज सीवियरिटी। ये किसी भी, मैंने आपको पहले ही फोटोग्राफ में दिखाया था किस तरह से कितने सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो इट कैन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज सीवियरिटी। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसकी डिजीज सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, वाइड रेंज हो सकती है इसमें डिजीज सीवियरिटी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जगह पर कर रहा है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कितने सारे आते जा रहे हैं, सबके सब आ गए, ये क्या होगा, ये क्या हो गया। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास में जब ऐसे भी आएगा तो वो सिर्फ लिखवा के नहीं लाएगा, तो ऐसे ही है, आपको उसे डायग्नोज करना होगा। तो आपको इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट ऑफ SLE, बिकॉज डायग्नोसिंग SLE इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत मुश्किल है SLE को डायग्नोज करना। ऑटो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज बन रही है, आपको समझ नहीं आता, दूसरे डिजीजेस के लिए ट्रीट करते जाते हैं पेशेंट को, और पेशेंट परेशान होता जाता है, आपको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, जबकि वो पेशेंट ऐसे लिखा होता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। किस मैनिफेस्टेशन को लेकर पेशेंट हमारे पास में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में हमारे पास में फटीग क्या आता है, थकान होती है, फीवर, मेलेज एंड वेट लॉस। तो दीस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। थकान रहती है, फीवर है, मेलेज है, वेट लॉस है।
क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन स्किन के अंदर होता है रैशेस. जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट पिक्चर दैट आई हैव शोड टू यू, जिसमें मैंने सारे डिजीजेस का नाम लिया था. उस पिक्चर को याद कीजिए और फिर इन सिम्टम्स को समझने की कोशिश कीजिए. आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी. क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन में रैशेस है ना, जो बटरफ्लाई रैशेस में आपको दिख रही थी लेडी के फोरहेड पे और नोज के अराउंड बटरफ्लाई रैश थे. दैट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एसएलई. फोटो सेंसिटिविटी होती है यहाँ पे, धूप में जाने से तकलीफ होती है पेशेंट को. वेस्कुलाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. एलोपेशिया हेयर फॉल वहाँ पे लिखा हुआ था. ओरल अल्सर्स हमने देखे थे एंड व्हिच मे और मे नॉट बी पेनफुल. तो यहाँ पे जो ओरल अल्सर्स भी होते हैं पेनफुल भी हो सकते हैं, पेनलेस भी हो सकते हैं. रेनॉल्ड्स फिनोमेनन यहाँ पे देखने को मिलता है. रेनॉल्ड्स फिनोमेनन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल पेरिफेरीज कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो जाते हैं ना, और स्किन हाथ पैरों के बिल्कुल फिंगर्स पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्पेशली इन द कोल्ड क्लाइमेट्स. इट इज कॉमन एंड मे बी एंटीनेट अदर सिम्टम्स बाय मंथ्स और ईयर्स. तो पेशेंट बहुत समय से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से रेनॉल्ड्स फिनोमेनन से सफर कर रहा होता है और आगे जाके फिर वो एसएलई में कन्वर्ट हो जाता है. आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि जॉइंट कंप्लेंट्स यहाँ पे होती हैं एसएलई के अंदर, तो ये कई सारे डिजीजेस से रिसेंबल करता है. इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, इसके अंदर सिमेट्रिक होता है, नॉन एरोसिव होता है. सिमेट्रिक से हमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस याद आता है, लेकिन यहाँ पे इरोजन हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे नॉन एरोसिव होता है. इन्फ्लेमेटरी है, सिमेट्रिक है, नॉन एरोसिव. माइग्रेटरी आर्थराइटिस है, जो कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में शिफ्ट करता रहता है. एंड अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हमने कई सारे डिजीजेस में देखी है, तो एसएलई में भी होता है. टेनोसाइनोवाइटिस होता है, स्मॉल जॉइंट साइनोवाइटिस. तो अगर आप पुराना अपने नॉलेज को थोड़ा सा याद करेंगे पिछले कुछ लेक्चर्स के, तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये सारे डिजीज कंडीशन, ये सारे सिम्टम्स हमने कई सारे डिजीज कंडीशन में पढ़े. तो अगर हमारे पास में एसएलई का पेशेंट आता है तो कैसे हम उसे डायग्नोस कर पाएंगे? वो तो हमें लगेगा कभी तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस लगेगा, कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस लगेगा, कभी गाउट लगेगा, कभी कुछ और लगेगा. So that's why I have told you that it is very difficult to diagnose the case of SLE. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने इसके सिम्टम्स को और देखिए किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, उसका मैनेजमेंट करना है. ये देखिए आप को बटरफ्लाई रैश कितने बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं आपको. यहाँ पे बटरफ्लाई रैश ना, ये रेनॉल्ड्स फिनोमेनन है. यहाँ पे आपको फिंगर्स में आप देखिए रेनॉल्ड्स फिनोमेनन. हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है. पेशेंट कैन बी एनीमिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, लिम्फेडेनोपैथीज हो सकती है. अब लिम्फेडेनोपैथी कई डिजीज कंडीशंस में होती है. स्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिल सकती है. वीनस और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. कार्डियोपल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस में प्लूराइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस. जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट पिक्चर दैट आई हैव शोड यू and try to correlate these symptoms with those pictures. Patients are those are also increased risk of myocardial infarction. There is increased risk of myocardial infarction, usually due to increased atherosclerosis. तो atherosclerosis यहाँ पे बढ़ जाता है. किडनी पर इफेक्ट आता है. किडनी पर क्या हो सकता है? नेफ्राइटिस. क्लासिफिकेशन इज प्राइमरीली हिस्टोलॉजिकल है ना. इसमें हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी हेमेचूरिया. इसके अंदर हेवी हेमेचूरिया होता है, प्रोटीनूरिया होता है, कास्ट. ठीक है, बहुत ज्यादा हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, कास्ट यहाँ पे होते हैं. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि दोनों की दो चीजों के बीच में है, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिस सिंड्रोम के बीच में हमारा आता है. बहुत बड़ी रेंज है इसमें सिम्टम्स की यहाँ पे हमारे पास में. तो आपने ये मत सोचिए कि सिर्फ 3 सिम्टम्स का नाम ले दिया, हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, कास्ट. इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. मेन डिटरमिनेंट्स आपको प्रोग्नोसिस तो ये बताते हैं कि किस तरह का है आपका हेमेचूरिया कितना है, प्रोटीनूरिया कितना है, कास्ट कितने आ रहे हैं यूरिन के अंदर. ये बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है. अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब गलत डायरेक्शन में, कम हो रहे हैं तो ठीक डायरेक्शन में. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है. देयर आर वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स लाइक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है. पेशेंट को सीजर्स आ सकता है. देखिए आप न्यूरोलॉजी में चलेगा, सीजर्स आ रहे थे, आप न्यूरोलॉजी में ढूंढते रहे, आ सकता है एसएलई. साइकोसिस हो सकता है, सेल्फाइटिस हो सकता है. सिस्टेमिक सिम्टम्स में फटीग, अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम पढ़ा है. तो फटीग, थकान रह सकती है. दैट कैन बी ड्यू टू एसएलई आल्सो. मलेज है, फीवर है, एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है. आप लोग कई बार कई सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, उसके डीडी में हमें एसएलई आता है, हमें समझ नहीं आता एसएलई क्यों आ रहा है डीडी में. तो आज हमारे पास मौका है इसे समझने का कि एसएलई के कितने सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिस वजह से एसएलई हम कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लेते हैं. इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझते चाहिए. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल. देयर कैन बी आर्थराइटिस और मायल्जियास. देयर कैन बी नॉन एरोसिव पॉलीआर्थराइटिस. देयर कैन बी हैंड डिफॉर्मिटीज. अब आप देखिए हैंड डिफॉर्मिटीज आप कहीं पढ़ रहे थे. उसके बाद में जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी हमने पढ़ा, और भी जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिली थी. उसी तरह से एसएलई के अंदर भी हैंड डिफॉर्मिटीज होती है. देयर आर मल्टीपल मायोपैथीज, मायोसाइटिस, सिस्टेमिक नेक्रोसिस ऑफ द बोन.
तो आप देखिए कितना वाइड प्रेजेंटेशन है यहाँ पर इस डिजीज का। क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन में फोटो सेंसिटिविटी आती है, तो फोटोडर्मेटाइटिस भी हम पढ़ के आए हैं, फोटो सेंसिटिविटी यहाँ देख रहे हैं, मैलर रैशेस बन जाते हैं, ओरल अल्सर्स बन जाते हैं, ओरल अल्सर्स आपका दिमाग कहीं और लेके जाते हैं जबकि वैसे नहीं होता। सॉरी, एलोपेशिया हो सकता है, हेयर फॉल है यहाँ पे, डिस्कॉइड रैश है, वेस्कुलाइटिस रैश है, इन अदर्स जिसमें अदर्स में अर्टिकेरिया, सोचियो अर्टिकेरिया एसिड की वजह से हो सकता है, सबक्यूटेनियस सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस हो सकता है यहाँ पे। तो देयर आर मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस, हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में एनीमिया हो सकता है, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, लिम्फोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो आपने देखिए पीनिया है विद लिम्फेडेनोपैथी, है ना। तो अगर ये ल्यूकोपीनिया है, लिम्फोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है विद लिम्फेडेनोपैथी, दैट कैन गाइड यू टुवर्ड्स एसिड। स्प्लीनोमेगाली यहाँ पे हो जाता है, हिमोलाइटिक एनीमिया है ना, एनीमिया क्रॉनिक डिजीज का होता है, इन चीजों का पीनिया, ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और उसके साथ में लिम्फेडेनोपैथी अगर आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में आता है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, ये सारे सारे अगर आप फर्स्ट पिक्चर को ध्यान रखेंगे तो सब चीजें अपने आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली क्लियर होती जाएंगी। So this is my request to you that please remember the first picture that I have shown you related to all the system involvement and all the symptoms, वहीं से सारी की सारी चीजें आई, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वो दिखा दिया था ताकि आप लोग को रिलेट कर पाओ, आपको ऐसा नहीं लगे क्या हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि सारे इतने सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे। इसलिए हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इतने ज्यादा वाइड है और इसीलिए मैंने आपको बोला है इट इज नॉट इजी टू डायग्नोस द केस ऑफ एसएलई, बहुत मुश्किल होता है एसएलई के केस को डायग्नोस करना। न्यूरोलॉजिकल में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, सारे ब्रेन में चलेंगे, मूड डिसऑर्डर, साइकियाट्री में पढ़ेंगे इन सब चीजों को आप लोग। हेडेक होता है, हेडेक भी हम पढ़ेंगे साइकियाट्री में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स होते हैं, यहाँ पे सीजर्स होंगे, मोनो और पॉलीन्यूरोपैथीज होंगी, यहाँ पे स्ट्रोक्स होगा, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट और मूड डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा, माइलोपैथीज हम यहाँ पे देखते हैं। कार्डियोपल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस में प्लूरेसी होगा, पेरिकार्डाइटिस, एफ्यूजन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ल्यूपस निमोलाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हेमरेज होगा, श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम। अब आप सोचिए इतने सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, इनका डिस्कशन करने बैठेंगे तो पूरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वापस आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं। रीनल फंक्शंस में प्रोटीनूरिया हो जाता है, ग्रेटर देन 500 mg पर 24 आवर्स से लेकर कास्ट हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ESRD होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज यहाँ पे लग जाता है। नेक्स्ट हम यूरोजेनेटिक पढ़ेंगे, उसमें सारी डिजीजेस आ जाएंगी आपकी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में नॉन स्पेसिफिक नोशिया, माइल्ड डायरिया हो जाता है, नॉर्मल लिवर एंजाइम्स हो जाते हैं, वेस्कुलाइटिस हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बस कैन बी इंट्रावेनस और आर्टेरियल ब्लड सर्कुलेशन, तो थ्रोम्बस बन सकता है एसिड के अंदर। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं जिसमें सिका सिंड्रोम, ड्राई आई हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, एपिस्क्लेराइटिस हो सकता है, या फिर वेस्कुलाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, तो आईज में इन्फ्लेम हो इसमें थ्रोम्बस भी बन गया। These are the various clinical manifestation, आपने देखा सिर से पैर तक कितने सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशन, कितना वाइड वैरायटी ऑफ मैनिफेस्टेशन आ रहा है, तो हम कैसे पता चलेगा कि एसिडी का पेशेंट है, तो हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ेंगे जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप हिस्ट्री ले पेशेंट की और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखें, एटलीस्ट 4 ऑफ द 11 फैक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट। जो 11 चीजें हैं उनमें से 4 चीजें मौजूद होनी चाहिए, है ना। इतनी सारी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें से 4 चीजें होनी चाहिए। अभी हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इज अ कार्डिनल फीचर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एएनए पॉजिटिव आएगा इसके अंदर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। लैब असिस्टमेंट इंक्लूड्स सीडीसी, ईएसआर करेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनए सब टाइप्स एंटीबॉडी सब चेक करेंगे, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप देखेंगे यहाँ पे, बीडीआरएल करेंगे, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट्स, यूरिन एनालिसिस, तो सारे के सारे इतने सारे मैनिफेस्टेशंस हैं, उनको देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे। अप्रोप्रिएट रेडियोग्राफिक स्टडीज आपको देखनी पड़ेगी, ईसीजी आपको करना पड़ेगा, हार्ट के लिए आप देखेंगे, कंसिडरेशन ऑफ द रीनल बायोप्सी द एविडेंस ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो हमें पता है कि उसके लिए आपको बायोप्सी में ही हमें उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस देख सकते हैं। एम एंड मैनेजमेंट यहाँ इसमें एम क्या है हमारे पास में, टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ इलनेस। सबसे पहले आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि उसकी इलनेस क्या है, किस तरह की उसकी डिजीज है, वो आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट परेशान होता है, उसको कई सारे मैनिफेस्टेशन, कई सारे सिम्टम कॉम्प्लेक्स आते हैं और डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। दूसरी चीज आती है टू कंट्रोल द सिम्टम एंड प्रिवेंट द ऑर्गन डैमेज। तो आपको जो सिम्टम्स पेशेंट के आ रहे हैं पहले तो समझाना है उसको, उसके बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए आपको उनको कंट्रोल करना है जिससे कि ऑर्गन डैमेज ना हो सके। गोल आर टू कंट्रोल एक्यूट सीवियर फ्लेयर्स एंड टू डेवलप मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज। तो जो फ्लेयर अप होता है, मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था इस डिजीज के अंदर, फ्लेयर अप कंडीशन मिलेगी और क्वेंसेंस मिलेगी, फ्लेयर अप मिलेगी, क्वेंसेंस मिलेगी। ऐसी डिजीज जहाँ पे बढ़ जाती है और फिर शांत हो जाती है।
तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा एक्यूट सीवियर फ्लेयर जो इसमें हो रहा है उसको आपको रोकना पड़ेगा और उसके लिए मेंटेनेंस स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी ताकि फ्लेयर अप बार बार ना हो सके। पेशेंट इज एडवाइज टू अवॉइड सन, क्योंकि यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो सन और अल्ट्रावायलेट रेज से दूर रहने के लिए पेशेंट को बोला जाता है। जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होती है उनका हाइपरटेंशन आपको कंट्रोल रखना होता है, हाइपरलिपिडेमिया को भी आपको कंट्रोल करना होता है। ब्लड प्रेशर को आप रेगुलर चेक करें, मॉनिटरिंग करें और हाइपरलिपिडेमिया ना होने दें, क्योंकि उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और फिर आपका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। Disease restricted to the skin and joints are managed by analgesics and NSAIDs. तो जो डिजीज कंडीशन हमारे पास अगर आ रही है इसलिए कि वो सिर्फ स्किन या जॉइंट में है, तो आप उस केस में NSAIDs दे सकते हैं या फिर एनालिसिस दे सकते हैं। Life threatening skin diseases affecting the kidney, CNS और cardiovascular system requires high dose steroids and immunosuppressive. क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसके लिए इस वजह से यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का जैसे मेथोट्रेक्सेट है, सल्फासाइक्लिन है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती हैं उसके केस में आपको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे ताकि आप जो डैमेज है आप उसे रोक सकें और पेशेंट को ठीक कर सकें। This was all about SLE. बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार बुक में से इसे पढ़ें। It was not possible for me to cover everything in this lecture. तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि what is SLE। हाँ, काफी कुछ इसमें बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी होंगी, लेकिन इस लेक्चर के बेसिस से भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिम्टम्स हैं इस पेशेंट में। SLE का जो पेशेंट होता है किस तरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, कितने वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, कितना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को पेशेंट के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए SLE को आप एक बार बुक में से पढ़ें। मैंने आपको इसमें नोट्स भी दिया, PPT भी दिया और मैंने आपको एक वर्ड फाइल भी अटैच करके दी जिसमें और भी चीज़ें बहुत सारी कुछ मेंशन है, आप उसे पढ़ें। और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, है ना, नेक्स्ट छोटा टॉपिक और रहेगा। इसके साथ में हम लोग एक या दो टॉपिक्स और बचते हैं, फिर हमारा लोकोमोटर सिस्टम खत्म हो जाएगा। So in the next lecture we will be talking about systemic sclerosis. मैं समझता हूँ कि आपको चीजें कुछ तो क्लियर हुई होंगी SLE के बारे में। आइडेंटिफिकेशन आसान नहीं है, बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, तो एक एक करके हमें उनके डायग्नोसिस को रूल आउट करना होता है, उसके बाद हम SLE पहुंच पाते हैं। जितने सिस्टम उतने इन्वेस्टिगेशन, जो भी क्लिनिकल फीचर्स हमें पेशेंट लेके आता है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके इन्वेस्टिगेशंस करा पाएंगे। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज की आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे ANA पॉजिटिव आएगा पेशेंट, यहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलेगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी सेल्स और आपके टिश्यूज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है, इस वजह से हो रही है एपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से, जो कि जल्दी हो रहा है, सेल डेथ जल्दी हो रही है और वो क्लियरिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से B और C ल्यूकोसाइट्स का प्रोलिफरेशन वहाँ पे हो रहा है। So this was all about SLE. In the next lecture we will be talking about systemic sclerosis. This session was powered by digital version 2.0 JAYOTI VIDYAPEETH University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in the comment box. I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. We'll meet in the next lecture with a new topic.